Hello dear students, what's going on? I hope you all are doing good. So dear students, yesterday we did our three adjectives that are adjectives of quality, adjectives of quantity and adjectives of number. Adjectives of quality tells the quality of a noun, adjectives of quantity tell the quantity or amount of the noun, and adjectives of number tell us the number that may be definite or indefinite. Okay, so today we are going to do the remaining three parts. First is demonstrative adjective. Our fourth adjective is demonstrative adjective. These adjectives point out to the person or thing which we are talking about in a sentence. उसको point out करते हैं, किसी noun को ये point out करते हैं, show करते हैं. These are this, that, these and those. Okay? और ये जो adjective है हमारा question होता है which, यानी कि कौन सा, उसका आंसर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देते हैं. द थिंग्स विच वी कैन सी वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देयर. कोई चीज अगर हम देख सकते हैं तभी हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं. इफ वी हैव सिंगुलर थिंग एंड दैट इज वेरी क्लोज टू अस देन वी विल यूज दिस. इफ वी हैव singular thing but far away from us then we will use that. We have plural things very close to us then we will use these. And if we have many things but that are far from us then we will use those. Like this piano is old, that tree is very green, these mangoes are very juicy, those boys are class monitors. So those है it means वो दूर है, these है हमारे पास है, this है तो पास है, that है तो वो दूर है. Let's move to interrogative adjectives. You can learn it by the term only. Interrogative हम हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं. So वो एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जो कुछ इंफॉर्मेशन गेट करते हैं अबाउट अ नाउन, then it is known as interrogative adjective. These adjectives are used in interrogative sentences to gain or seek some information about the noun in question. Interrogative adjectives are what, which and whose. Okay dear student, एक बात याद रखना कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है. ओके हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन अगर इनके बाद एक वर्ड के बाद नाउन है तभी वो एडजेक्टिव होगा. अगर यहाँ पे हमारे पास व्हाट म्यूजिक है तो ये एडजेक्टिव है. अगर हम कहें व्हाट इज तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा. मीन्स ये है कहने का अगर नाउन के साथ कोई वर्ड है तो ही वो एडजेक्टिव होगा, बिना नाउन के कोई वर्ड है तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा. ओके सो व्हाट म्यूजिक, तो व्हाट के साथ म्यूजिक ऐड है तो ये एक एडजेक्टिव है. ओके अगर मैं कहूँ व्हाट इज योर नेम तो व्हाट के साथ नाउन नहीं है तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा. नेक्स्ट इज हुज पेंसिल इज दिस. ओके तो इट इज ऑल्सो विद नाउन. विच हाउस इज योर्स. ओके सो दिस इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव. सो we have done demonstrative adjective and interrogative adjective. Let's move to next adjective. Our next adjective is possessive adjective. We have already discussed the same. These adjectives show possession. ओके पोजेशन यानी ओनरशिप, किसी की कोई चीज होना. अगर मान लो मेरी चीज है तो माई है, तुम्हारी है तो योर है, तो मतलब जिसकी जो चीज है उसी का पोजेशन शो करता है. माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर आर possessive adjectives. This can be used before both singular and plural nouns in a sentence. Okay, I ate all my chocolates. We finished our meal. So these are very easy. We have already discussed in determiners. So dear students, I hope it is clear to you. You
have learned all the kinds of adjective. Still you have any doubt, please write in the comment box. Now look at some of the examples. Underline the correct option. John goes to church every or each morning. तो यहाँ पे each का यूज हम दो के लिए करते हैं और दो से ज्यादा के लिए करते हैं. एवरी का यूज हम हमेशा दो से ज्यादा के लिए करते हैं. ओके, सो ईच है, हम फोकस करते हैं ईच पे, इंडिविजुअल पे. मान लो एक ग्रुप है, अगर हम उसमें कहते हैं ईच ऑफ यू, यानी कि हम हर एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम कहे एवरी वन ऑफ यू, तो हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास मॉर्निंग है, संडे, मंडे, कोई भी फ्रीक्वेंसी है, तो हम वहां पे एवरी यूज करते हैं. सो जॉन गोज टू चर्च ईच मॉर्निंग हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एवरी मॉर्निंग. नेक्स्ट इज देयर इजंट एनी. मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी ही आएगा, सम नहीं आएगा. सो देयर इजंट एनी होप टू विन द इलेक्शन. नेक्स्ट इज हाउ मच और मैनी टाइम डू यू नीड टू फिनिश द टास्क. आई टोल्ड यू कि मच जो होता है अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा और मैनी जो है काउंटेबल के लिए यूज होगा. सो हाउ मच टाइम, टाइम को ही हम मच के साथ यूज करेंगे. नेक्स्ट, आई कुड अरेंज अ लिटल और अ फ्यू फूड फॉर यू एट दिस टाइम ऑफ द नाइट. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि फ्यू है जो काउंटेबल के लिए यूज होता है और लिटिल को हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं. तो फूड हमारा यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो हम अ लिटिल यूज करेंगे. नेक्स्ट, यू हैव सम और एनी मनी फ्रॉम यू. ओके, तो नेक्स्ट इज फिफ्थ आर. यू हैव एवरीथिंग वन कैन ड्रीम ऑफ. डू यू स्टिल वॉन्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम मी. ओके, फिफ्थ क्या है हमारा, यू हैव एवरीथिंग वन कैन ड्रीम ऑफ. डू यू स्टिल वॉन्ट एनी और फ्यू गिफ्ट. तो मैंने बताया था इंटेरोगेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए हम एनी का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज आई नीड सम और एनी मनी फ्रॉम यू. तो पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं है. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता तो हम एनी का यूज करते हैं, लेकिन ये ना ही इंटेरोगेटिव है ना ही ये नेगेटिव, तो हम सम का यूज करेंगे. नेक्स्ट, शी डजंट हैव मच टाइम. टाइम के साथ हम कभी मैनी नहीं लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो सम का यूज नहीं होगा, मच का यूज होगा. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सो मैनी कभी नहीं होता है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. अ फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पे फ्यू लगेगा, लिटिल नहीं लगेगा. अ फ्यू स्टूडेंट्स नो द आंसर टू द क्वेश्चन दैट द टीचर हैज आस्क्ड. नेक्स्ट इज ही हैज हर फ्यू और द फ्यू रुपीज लेफ्ट. ओके, मैंने आपको बताया था फ्यू बिल्कुल भी नहीं है, अ फ्यू थोड़ा सा है, द फ्यू जो है लेकिन काफी है. तो हम यहाँ पे कहेंगे, ये कह रहा है कि मेरे पास कम पैसे, इट मीन्स इट इज नॉट द एज पर द रिक्वायरमेंट, ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है. तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही हैज अ फ्यू रुपीज लेफ्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, these are some uses. I hope it is clear to you. In next exercise we are to circle the adjective and tell the kind. Okay, तो इस तरह से आपके जो एडजेक्टिव को बताया गया है और एक साइड हमें उसका काइंड्स बताया गया है. So you are to read it from home. And dear students, if still you have any doubt, you can write in the comment box. And please take all the exercise very seriously, because we are to do the question in exam on the basis of our this रिवीजन ओनली. जो हम ये सीख रहे हैं इसके ही बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. सो ट्राई टू डू ईच एंड एवरी सेंटेंस योर सेल्व्स. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी और यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. सो नाउ आई विल गिव यू some question for homework.
Thank you.